So we were talking about water treatment, and water treatment after last time we did filtration, and after the process of filtration, the water is disinfected before being passed into the distribution system. And disinfection, there are different processes of disinfection, and we will discuss one by one each of them. So, disinfection by definition is the process of removal or killing of pathogenic bacteria, not the non-pathogens. Okay? Pathogens are disease-causing bacteria, and only they are killed by the processes of disinfection. Um, uh, the process with which all type of bacteria are killed is known as sterilization. ठीक है, जिस तरीके से हम मेडिकल के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह को स्टरलाइज करते हैं, या जिस तरह होता है स्टरलाइज सिरिंजेस होती हैं, तो स्टरलाइजेशन इज a bit different from disinfection, because in case of disinfection only the pathogenic or disease causing bacteria are destroyed, whereas in sterilization the every pathogens every bacteria, every type of bacteria is destroyed or killed. This is a difference between disinfection and sterilization. And now there are so many different types of disinfection methods. Mostly these are physical, chemical, and mechanical in nature. This is the main classification of these disinfection methods. फिजिकल मेथड आपको कुछ मालूम भी होंगे, जैसे हीटिंग एंड बॉइलिंग. हीट एंड बॉयल करने से कुछ बैक्टीरिया जो है, जो हीटिंग के टेम्परेचर तक सस्टेन नहीं कर सकते या नहीं जिंदा रह सकते, वो मर जाते हैं. ठीक है, तो यू कैन से दैट 99% ऑफ द बैक्टीरिया कैन बी किल्ड विद हीटिंग एंड बॉइलिंग. देन सनलाइट रेडिएशन, आपको पता है सनलाइट के बीच में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, और अल्ट्रावायलेट रेज दीज आर they destroy the pathogenic bacteria. Then of course ultraviolet rays itself and ultrasonic waves. Ultrasonic waves क्या होता है? Sound waves of very fine frequency, very small frequency. These are the sound waves. और जब वो पास करती हैं, तो अगर उसके बीच में कोई बैक्टीरिया है, तो उसके सेल वॉल के बीच में से वो गुजर जाती है, सेल के दरमियान में से गुजर जाती है ये वेव. जैसे हम कहते हैं कि मोबाइल फोन्स की जो होती हैं वेव्स होती हैं, वो आपको हर्ट करती हैं. तो इस बिकॉज वो भी हमारे पास इसी तरीके से वेव्स होती हैं, माइक्रो वेव्स होती हैं, जो कि इंसान के जिस्म के बीच में से पास कर सकती हैं. ठीक है, तो इसलिए दे आर डेंजरस एज वेल. सो दीज आर द फिजिकल मेथड्स ऑफ disinfection. Chemical methods are more applicable as far as the drinking water treatment is concerned, and different chemicals are introduced or added to water so as to kill the pathogens. And first of all is, and the most common one is chlorine and its compounds. This addition of chlorine and its compound is known as chlorination. So chlorine is a very easily available disinfectant chemical and is very effective as well. Then it is potassium permanganate. Potassium permanganate is KMnO4. Potassium permanganate is formed or is available in crystalline form. Small crystals which when added to water give bright pink color. आप लोगों ने देखा होगा मेडिकल की ड्रग्स की दुकानों पे मिलती हैं पिंकी, अक्सर जो है कुआं वगैरह में डाल देते हैं, जैसे सावन के दिन होते हैं या इन्फेक्शन के दिन होते हैं, या पानी की टंकी के बीच में घरों में भी ये डाल देते हैं. ऐसे क्रिस्टल्स, छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, और रुई पानी में डालो ब्राइट
पिंक कलर का जो है वो कलर वो देता है। तो ये भी दिस इज ऑल्सो अ गुड डिसइंफेक्टेंट। और जो है डोमेस्टिक लेवल के ऊपर इसको आसानी से इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरीन की चूंकि बहुत उसको जो है करना होता है, मॉनिटर करना होता है उसकी क्वालिटी को, सो क्लोरीन इज ओनली यूज ऑन प्रोफेशनल लेवल। ठीक है। हाँ ये है कि क्लोरीन कम की कुछ कंपाउंड्स की छोटी छोटी सी बारीक बारीक सी टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा बाजार के बीच में जब फ्लड्स के दिन होते हैं तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप क्लोरीन की टैबलेट्स घर में इस्तेमाल करें। जैसे आप आपके पास पानी का कूलर है जहाँ पर आपने पानी जिसमें स्टोर करते हैं, तो इसको 20 लीटर्स के बीच में एक टैबलेट बीच में डाल देते हैं। हो सकता है आप लोगों से बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया भी हो, जब या जिस तरह मक्खियों के दिन होते हैं, मच्छरों के दिन होते हैं, या कोई एपिडेमिक के दिन होते हैं, तो या फिर किसी इलाके में अगर पानी मुस्तकिल वाटर सप्लाई जो है वो उसके बीच में जो है कोई डिजीज आ रही हो या वो इन्फेक्टेड हो, तो उसके बीच में हम फिर क्लोरीन की टैबलेट्स भी यूज करते हैं। सो पोटेशियम परमैंगनेट एंड क्लोरीन आर टू ऑफ द केमिकल्स एंड इन एडिशन टू इट ओजोन is three oxygen molecules, ozone, bromine, iodine. These are also disinfectant compounds. Then there is मैम mechanical. जी अगर क्लोरीन को पानी में मिक्स करे तो उस पानी को हम पी सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल, क्लोरीन को पानी में यूज करते तो उस पानी को हम यूज करते हैं। हालांकि क्लोरीन जो है वो हाईली पॉइजनस होती है, तो ज़ाहिर वो इंसान के लिए पॉइजनस होती है तो वो बैक्टीरिया के लिए भी पॉइजनस होती है। तो अभी इसकी डिटेल मैं आगे आपको बताती हूँ, लेकिन क्लोरीन को बहुत माइन्यूट अमाउंट के बीच में यूज किया जाता है, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए फिर उस लेवल के ऊपर या उस कंसंट्रेशन के बीच में वो हार्मफुल नहीं होता, वो सिर्फ बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल होता है। ठीक है। तो वी ह्यूमंस कैन कंज्यूम दैट वाटर सेफली। ठीक है, आगे मैं आपको बताती हूँ उसका। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज है मैकेनिकल डिसइंफेक्शन। अब मैकेनिकल डिसइंफेक्शन क्या होता है, ये थोड़ा सा एम्बिगुअस सा है, ये कंफ्यूजिंग कह लें, एम्बिगुअस कह लें। मैंने आपको लास्ट टाइम भी शायद बताया था कि बैक्टीरिया डज नॉट exist in water or air for that matter independent. ठीक है। बैक्टीरिया ऑलवेज नीड्स अ होस्ट टू राइट ऑन या टू रिजाइड ऑन। और फॉर एग्जांपल हम जो पानी के बीच में सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर बैक्टीरिया जो है वो अटैच हो जाता है और फिर वो उसके साथ घूमता फिरता रहता है। So if we remove that suspended particle, or we remove that suspended particles on which bacteria is residing, then by removing of these particles, bacteria is automatically removed along with it. ठीक है। तो इसके बीच में कोई भी आपने फिजिकल टेक्निक इस्तेमाल नहीं की, कोई केमिकल टेक्निक इस्तेमाल नहीं की, सिंपली एक मैकेनिक्स जो है, इसलिए इसको मैकेनिकल कहते हैं, नॉट रियली मशीन्स के साथ नहीं, लेकिन एक मैकेनिक्स बीच में ये इसमें करता है, एक्ट करता है कि जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर बैक्टीरिया अटैच्ड होता है, पार्टिकल रिमूव कर दिए तो बैक्टीरिया भी रिमूव कर दिया। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इन सेडिमेंटेशन टैंक जो हमने जो किए थे, दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेडिमेंटेशन टैंक्स, तो उसके बीच में जो सॉलिड पार्टिकल्स, सॉरी सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे, when they were settled down, so a great number of bacteria also settle down or they are also removed from the water in this way. ठीक है। तो इसको मैकेनिकल डिसइंफेक्शन भी कंसिडर किया जाता है। अदरवाइज लेकिन ये इतना ज़्यादा हाई रिमूवल रेट इसके बीच में नहीं होता एज कंपेयर टू केमिकल एंड फिजिकल ट्रीटमेंट, फिजिकल डिसइंफेक्शन। So let's talk about fluorination. Fluorination हम डिटेल में करेंगे because this is the most commonly used technique
in drinking water system and disinfection, जो हम कमर्शियल लेवल पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के बीच में करते हैं. Reason being that chlorine is very effective for the removal of pathogens and also the remover of odor and taste. ठीक है, इन दो चीजों को भी रिमूव. क्यों? क्योंकि क्लोरीन की अपनी एक खास स्मेल होती है. अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस हुआ हो कि आपने वो क्लोरीन की टैबलेट्स या वाटर प्योरीफाइंग टैबलेट्स यूज की हो, तो पानी के बीच में एक पंजेंट सा टेस्ट आ जाता है, खुद ब खुद एक टेस्ट सा आ जाता है, तो वो फिर बाकी टेस्ट को ओवरकम कर देता है. ठीक है, या उनको रिमूव भी कर देता है, क्योंकि टेस्ट एंड ऑर्डर इज मेनली ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ pathogens as well as some algae and dissolved gases वगैरह. तो इस वजह से जो है जब हम क्लोरीन ऐड करते हैं तो वो हमारी पानी में से ऑर्डर एंड टेस्ट को, और उसका अपना टेस्ट एंड ऑर्डर ओवरकम कर देता है, पानी के बीच में रिलेटिवली फ्रेश टेस्ट आ जाता है. ठीक है, हाँ, क्लोरीन का अपना टेस्ट बीच में जरूर आता है, जो कि उसके साथ वो शुरू में इंसान को थोड़ा सा रिपल्सिव लगता है, लेकिन फिर टाइम के साथ साथ जो है उसकी आदत हो जाती है. बिकॉज क्लोरीनेशन हमारे इलाकों में तो क्योंकि डायरेक्ट पंपिंग होती है यूजुअली, तो हम क्लोरीनेशन वगैरह बिल्कुल भी नहीं करते हैं. लेकिन बाज़ औक़ात जिन इलाकों में ओवरहेड वाटर रेजरवॉयर्स यूज होते हैं, तो वहाँ पर जो है वो पानी के बीच में क्लोरीन ज़रूर ऐड की जाती है, स्पेशली इन्फेक्शन के दिनों में. So the chlorination is a process of adding chlorine or chlorine compounds. ठीक है, क्लोरीन प्योर फॉर्म के बीच में या मॉलिक्यूलर फॉर्म के बीच में अवेलेबल नहीं भी होती है. ठीक, तो हम क्लोरीन के कंपाउंड्स यूज करते हैं डिफरेंट किस्म के. फॉर एग्जांपल सोडियम हाइपोक्लोराइड. अब सोडियम हाइपोक्लोराइड फॉर्मूला है उसका NaClO, जिसको हम यूजुअली ब्लीच भी कहते हैं. ये जो कपड़ों को देने वाला ब्लीच होता है ना, ये भी यही चीज होती है, सोडियम हाइपोक्लोराइड. कभी आपने स्मेल किया हो तो उसमें से एक पंजेंट सी स्मेल आती है. ठीक है, तो दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन टू वाटर. ठीक है, इसमें ऐड करना. दिस मेथड इज यूज्ड टू किल बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के साथ साथ वायरसेस एंड अदर माइक्रोब्स. फॉर एग्जांपल प्रोटोजोआ. आपको मैंने बताया था कि प्रोटोजोआ आर इक्वली हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ. सिर्फ बैक्टीरिया ही नहीं बल्कि प्रोटोजोआ भी होते हैं. प्रोटोजोआ माइन्यूट मॉलिक्यूलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं. In particular, chlorination is used to prevent the spread of waterborne diseases such as cholera, dysentery and typhoid. ठीक है, अभी आपको बताया मैंने फ्लड्स के दिनों में या कोई एपिडेमिक्स हो, कॉलरा की एपिडेमिक आई हो, डायसेंट्री की एपिडेमिक आई हो, टाइफाइड की एपिडेमिक आई हो, तो इनके जो बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करने में क्लोरीनेशन इज वेरी इफेक्टिव. Okay, जी, chlorine and chloramines are the major disinfectants used in public water systems. ठीक है, तो पब्लिक वाटर सिस्टम्स के बीच में अभी मैंने आपको बताया, तो एक तो हो गया क्लोरीन, समझ आती है. क्लोरामीन जो है वो क्लोरीन कंपाउंड्स ही होते हैं, बट दीज आर अमोनिया कंपाउंड्स विद क्लोरीन. ठीक है, क्लोरीन जो है वो अमोनिया के साथ मिलके या किसी और नाइट्रोजनस कंपाउंड्स के साथ मिलके, आयंस के साथ मिलकर जो कंपाउंड बनाते हैं उसे क्लोरामीन कहते हैं. ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे क्लोरामीन्स. सो क्लोरीन अब किस तरीके से मैकेनिज्म क्या है कि क्लोरीन वो करती है, इफेक्ट करती है. क्लोरीन बेसिकली हमारा जो लिविंग सेल होता है, जैसे एनिमल सेल है, बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल, तो उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को काइंड ऑफ डिसॉल्व कर देता है. ये इतना पॉइजनस सा होता है. एक्सक्यूज मी मैम. जी मैम मेरा क्वेश्चन है मैम. जी, बोले बोले. मैम हम जो वाटर में क्लोरीन का यूज़ करते हैं मैम, जो माइक्रोब्स वगैरह होते हैं मैम, उनके साथ रिएक्ट करके तो मैम हमारा जो इशू होता है वाटर ट्रीटमेंट का मैम, वो तो सॉल्व हो जाता है, लेकिन कुछ क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स मैम वो तो रह जाते हैं मैम. वो भी तो रिएक्ट करेंगे ना ह्यूमन बॉडी के साथ जब हम हाँ जब जी, वो जी
बिल्कुल 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 करते हैं, अगर अगर जरूरत से ज्यादा क्लोरीन डाली जाए, ठीक है। तो फिर होता ये है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि क्लोरीन की जो अमाउंट होती है उसको कैलकुलेट करके डालना होता है। तो वो मैं भी आपको डिटेल से बताती हूँ आगे। वो इस तरीके से उसको कैलकुलेट करते हैं कि उस वक्त जितने भी पैथोजेंस हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाए, और जो बाकी क्लोरीन है, अच्छा इसमें एक और चीज भी होती है, मैं आपको अर्ली बता देती हूँ, आपका क्वेश्चन जरा सॉल्व हो जाए। कि पानी जब वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बीच में तो आपने क्लोरीन ऐड कर दी, बैक्टीरिया खत्म हो गए। जब आप उसे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डालते हैं पानी को, तो ऑन इट्स वे टू द कंज्यूमर, रास्ते के बीच में, रास्ते में कोई इनफ्लोज सीपेजेस हो सकते हैं, कोई कंटेमिनेशन हो सकती है, तो उस वक्त इन्फेक्शन सॉरी कंटेमिनेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, शुरू में तो हमने साफ पानी बना दिया, लेकिन अब उसको हमने बॉटल तो नहीं करना, उसे हमने पाइप्स में डालना है और पाइप्स के साथ जो है वो कन्वे करना है। तो उस पानी को भी जो है वो करने के लिए कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द पैसेज या थ्रू आउट द पाइप ऑफ द कन्वेंस, उसको भी डिसइंफेक्ट करने के लिए हम इतनी क्लोरीन डालते हैं कि वो रास्ते के बीच में भी डिसइंफेक्शन करती रहे, और वो अगर कोई पैथोजन एंटर हो जाता है वाटर सिस्टम में तो वो, और क्लोरीन मस्ट बी just the right amount, that when it reaches the consumers, and then its amount is just about the allowable maximum limit। ठीक है, इसकी मैक्सिमम लिमिट भी होती है कि उससे ज्यादा जो है वो क्लोरीन पानी में नहीं होनी चाहिए। तो ये बाकायदा एक पूरा काइनेमेटिक्स होता है, और उसके बीच में कैलकुलेशन की जाती है कि कितनी देर तक क्लोरीन जो है वो पानी में ट्रेवल करेगी और वो कंज्यूमर तक पहुंचेगी, और इतनी देर में कितनी बाकी बच जाए। ठीक है, उसे रेजिडुअल क्लोरीन कहते हैं, ये भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको क्लोरीन को सिर्फ उतनी ही अमाउंट डालते हैं बाकायदा कैलकुलेट करके। हमें हमारे पास पता होता है कि हमारे पास कितने 1000 गैलन्स जो है वो पानी है, उसके बीच में हम कितनी क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन डालें तो डिसइंफेक्शन भी हो जाए, और इतने टाइम के बाद, फॉर एग्जांपल आधे घंटे बाद या 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद, वो फिर बिल्कुल इतनी कम हो जाए कि वो विद इन लिमिट्स चली जाए, विद इन अलाउबल लिमिट्स हो जाए। ठीक है, हम इसे छोड़ते नहीं है कि हम मैक्सिमम इसके बीच में इतनी क्लोरीन डाल दें, पैथोजन मर जाए, 7 बंदे भी मर जाए। ठीक है, इस तरीके से नहीं करते हैं। अभी आपको बताते हैं आगे डिटेल से। So I was talking about the mechanism of how the chlorine acts on the bacterial cell. So it destroys, or it dissolves rather, it dissolves the cell membrane. तो जब सेल मेम्ब्रेन ही खत्म हो जाएगा तो उसके अंदर जो उसका डीएनए होगा बैक्टीरिया का, तो वो उसको डीएनए की एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर देता है। तो डीएनए की एक्टिविटी डिस्टर्ब की, इसका मतलब है कि वो द सेल इज किल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से क्लोरीन वो होती है। अच्छा, क्लोरीन जो है गैस है बेसिकली, इन नेचर क्लोरीन एग्जिस्ट इन गैशियस फॉर्म। ठीक है, लेकिन क्लोरीन के कुछ सॉलिड कंपाउंड्स भी जो है वो सिंथेसाइज किए जाते हैं, और फिर उनको पानी के बीच में मिक्स करके सोल्यूशन भी बनाया जाता है। और क्लोरीन गैस इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस गैसेस ऑन अर्थ, इस चीज को याद रखें। ठीक है, सो मच सो कि क्लोरीन को सिंपली अगर जो कलर पिगमेंट्स हैं, कलर पिगमेंट्स के ऊपर ये एक्सपोज हो जाए तो उसका रंग उड़ जाता है। ठीक है, वो कलर पिगमेंट्स को भी डिसॉल्व कर लेती है। जिस तरीके से ये ब्लीच होता है, अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, कपड़ों के ऊपर से कोई ऐसे जो है सख्त दाग लग जाए जो कि आम जो है डिटर्जेंट से नहीं रिमूव हो सकते, तो हम उन पर ब्लीच डालते हैं तो उससे वो हो जाए। तो इवन अगर ज्यादा कपड़ों को ब्लीच दिया जाए तो कपड़े डिस्कलर भी हो जाते हैं, इसलिए कहते हैं कि तेज रंगों वाले जो कपड़े होते हैं उनके ऊपर ब्लीच नहीं डालते, वरना कपड़े जो है वो फेड हो जाते हैं। अच्छा, नाउ what are the compounds of chlorine that are used for chlorination or disinfection? सबसे पहले तो क्लोरीन
which is used for the disinfection is free available chlorine. हमारे पास क्लोरीन जो है दो किस्म के कंपाउंड्स में अवेलेबल होती है, एक होती है फ्री अवेलेबल क्लोरीन, एक होती है कंबाइंड अवेलेबल क्लोरीन। ठीक है, ये दो टर्म्स हैं, ये दो टर्म्स आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेंगी, इतनी मुश्किल नहीं है। बट फ्री अवेलेबल क्लोरीन इज दी नाम उसका फ्री अवेलेबल है, बट इट इज प्रेजेंट इन कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड, ये थोड़ी सी केमिस्ट्री है, हाइपोक्लोरस एसिड एंड हाइपोक्लोराइट आयंस, मतलब OCl आयंस। ठीक है, OCl ऑक्सीजन और क्लोरीन, OCl आयनिक फॉर्म में होता है, और अगर इस फॉर्म में हो OCl की कॉम्बिनेशन के बीच में कोई भी कंपाउंड, देन वी कॉल इट फ्री अवेलेबल क्लोरीन। हालांकि ये ऑक्सीजन के साथ है, लेकिन जब वो ऑक्सीडाइज होता है, रादर रिड्यूस होता है, नॉट ऑक्सीडाइज बट। आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन याद है? कुछ FSC में आपने पढ़ी थी, कोई मुझे बता सकता है क्या होता है? Yes, ma'am. यस मैम। Removal of oxygen. Removal of Oxidation. oxygen and addition of oxygen. हाँ, ऑक्सीडेशन के बीच में ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो जाती है, कंबाइन हो जाती है, और रिडक्शन के बीच में ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है। सो OCl आयन, OCl फॉर्म के बीच में जब भी क्लोरीन अवेलेबल होती है तो उसके बीच में ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो सकती है, तो रिड्यूस होके हमारे पास सिर्फ क्लोरीन बाकी बच जाएगी। तो क्लोरीन इज प्रेजेंट, देन द क्लोरीन इज अवेलेबल इन वाटर इन फ्री फॉर्म। ठीक है, इसको फ्री अवेलेबल क्लोरीन कहते हैं। और बिकॉज क्लोरीन हैज अ हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, फ्री क्लोरीन हैज हाई ऑक्सीडेशन potential and is a more effective disinfection than all the other forms of chlorines. ठीक है, या all other compounds of chlorine. Obviously क्लोरीन कंपाउंड Cl या OCl में हो, नेगेटिव इसमें चार्ज होता है। तो अगर जिस तरीके से सोडियम है, तो सोडियम इज हमारे पास, या नाइट्रोजन कह लें। अच्छा, ये नाइट्रोजन और ये हम नाइट्रोजन और पोटेशियम पर्टिकुलरली मैं नाम क्यों ले रही हूँ, बिकॉज नाइट्रोजन एंड पोटेशियम जो है वो इज सोर्स ऑफ लाइफ यूं कह रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक लाइफ जो होती है उसका ओरिजिन नाइट्रोजन और पोटेशियम होता है। तो जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं तो वो नाइट्रोजन और पोटेशियम के बने हुए होते हैं। इवन जिस तरीके से हमारा जो है ह्यूमन एक्सक्रीटा यूं कह लें, तो उसके बीच में सोडियम और पोटेशियम जो है वो मौजूद होता है। तो सोडियम और पोटेशियम इज इंडिकेटर ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, तो बैक्टीरिया भी चूंकि ऑर्गेनिक होता है, सो सोडियम पोटेशियम दोनों पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और Cl जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो वो उसको उनका बॉन्ड जो है वो सोडियम और पोटेशियम का वो ब्रेक करके और अपने साथ जो है उसे कंबाइन कर देता है। ठीक है, तो उधर सोडियम पोटेशियम जो है वो ऑक्साइड्स या नाइट्रेट्स या जिस भी है ऑक्सीजन की के साथ कंबाइन होते हैं, तो उसको वहां से ब्रेक डाउन कर लेता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज अ मेजर ऑफ हाउ रेडिली अ कंपाउंड विल रिएक्ट विद अदर। ठीक है, यही बात मैं भी आपको बता रही थी कि क्लोरीन जो है वो हाईली रिएक्टिव है और वो अगला जो कंपाउंड होता है उसके साथ उसको ब्रेक डाउन कर देता है। तो जब आप एक सेल को ब्रेक डाउन कर देंगे, कंपाउंड जो है वो सेल बनाते हैं। ठीक है, ये सेल की केमिकल कंपोजिशन होती है, तो वो सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो इट हैज हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो इट ब्रेक्स डाउन द सेल्स। अच्छा, ये तो थी हमारे पास फ्री अवेलेबल क्लोरीन। फिर हमारे पास होती है कंबाइंड अवेलेबल क्लोरीन। क्लोरीन प्रेजेंट इन द कॉम्बिनेशन ऑफ, स्पेशली इन कॉम्बिनेशन विद अमोनिया, क्लोरीन के अमोनिया कंपाउंड्स। ठीक है, अभी आगे उसकी डिटेल पढ़ते हैं। तो अमोनिया आपने अगर फार्मूला हो याद हो, दिस इज NH3। ठीक है, NH3 के साथ जब कंबाइन करते हैं या किसी और नाइट्रोजन कंपाउंड्स के साथ, ठीक है, खाली अमोनिया ही नहीं, अमोनिया के अलावा और भी नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं। तो ऑल ऑफ दीज कंपाउंड्स, नाइट्रोजनस कंपाउंड, स्पेशली अमोनिया,
दिस इज नोन एज कंबाइंड अवेलेबल क्लोरीन। ठीक है, अब क्लोरामीन्स इनको कहते हैं क्लोरामीन्स। क्लोरा मीन्स मीन्स जो है वो जो है अमोनिया से निकला है। सो क्लोरामीन जो है कैन बी मोनो डाई एंड ट्राइक्लोरामीन। अब मोनो डाई और ट्राइक्लोरामीन क्या होता है ये भी आपको बताती हूँ, बट बिफोर गोइंग एनी फर्दर, free available chlorine is 20 times more effective or more stronger than the combined available chlorine। ठीक है, क्योंकि फ्री अवेलेबल क्लोरीन रेडिकल फॉर्म में होता है, ऑलरेडी अवेलेबल होता है, फ्रीली घूम फिर रहा होता है, तो वो अगले के साथ रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, जबकि अमोनिया के साथ जो क्लोरामीन है, अमोनिया या कोई और नाइट्रोजन कंपाउंड के साथ हो तो स्टेबल कंपाउंड होता है। It does react because chlorine itself is highly oxidant. It does react, but इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो फ्री अवेलेबल क्लोरीन की निस्बत कम होती है। ओके, सो क्लोरामीन्स होता क्या है? क्लोरामीन्स अभी आपको मैं थोड़ा सा बता दिया, थोड़ा सा और बता देती हूँ। ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी डिसइंफेक्टेंट्स। ठीक है, तो सेकेंडरी डिसइंफेक्शन क्या होता है? प्राइमरी डिसइंफेक्शन है जो हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर जो पानी होता है उसको हम डिसइंफेक्ट करते हैं या क्लोरीनेशन उससे करते हैं। दूसरा जो मैंने अभी आपको बताया था कि वाइल इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द पाइप्स, उसमें कंटेमिनेशन के चांसेस होते हैं, तो उसके बीच में इतनी क्लोरीन हम थोड़ी सी एडिशनल ऐड कर देते हैं एट द टाइम ऑफ प्राइमरी क्लोरीनेशन कि वो along with the passage of pipes बीच में क्लोरीन एंड जो है बीच में मौजूद हो, और वो साथ साथ अगर कोई डिसइंफेक्टेंट दी कंटेमिनेंट जो भी ऐड होता जा रहा है उसको साथ साथ डिसइंफेक्ट करती रहे। ठीक है, तो इसको सेकेंडरी डिसइंफेक्शन कहते हैं। तो क्लोरामीन कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल, जिस तरीके से अभी आपको मैंने बताया कि क्लोरीन रेडिली रिएक्टिव होती है, क्लोरामीन आर रिलेटिव स्टेबल, तो वो ज्यादा देर तक पानी के बीच में रहते हैं। तो जब ज्यादा देर तक रहते हैं तो वो आहिस्ता 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 पानी के साथ पाइप के बीच में वो फ्लो करते जाते हैं और साथ साथ अपनी डिसइंफेक्शन का काम करते जाते हैं। सो क्लोरामीन्स आर मोर इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ सेकेंडरी डिसइंफेक्शन। ठीक है, जिस तरीके से जी आपने मैम ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। अगर हम क्लोरामीन डाल देंगे और डिस्टेंस पाइप के थोड़ी हो तो फिर वो तो डेंजरस होगा मैम। मुझे आपकी बात तो सही समझ नहीं आई, लेकिन देखें आप कह रहे हैं क्लोरामीन जो है वो रह जाएगा, डिसइंफेक्शन की इतनी जरूरत नहीं होगी। हेलो हेलो जी जी मैम, अगर पाइप की डिस्टेंस कम हो, अगर हम क्लोरामीन इसमें डाल देंगे तो फिर ये तो डेंजरस नहीं होगा? जी एग्जैक्टली देखें इसके बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी आपको नहीं बताई जा रही। डिसइंफेक्शन जो है वो सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है, वो वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है, वो वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कैलकुलेटेड होती हैं। ये बाकायदा एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म का हमारे पास थ्योरीज हैं। आपके नोट्स के बीच में भी ये अवेलेबल हैं, लेकिन मैं अभी आपको करवा नहीं रही हूँ। चिक्स लॉ हो गया, ये हो गया, तो ये बाकायदा क्लोरीन की डिस्ट्रक्शन की काइनेटिक्स है। ठीक है, इसे क्लोरीन काइनेटिक्स कहते हैं। काइनेटिक्स का क्या मतलब होता है कि क्लोरीन अपनी ओरिजिनल हालत से डिस्ट्रॉय होकर और बिल्कुल स्टेबल कंपाउंड के बीच में बन जाएगा। जिस तरह अभी आपने कहा कि डिस्टेंस कम हो, तो जी according to distance या length of the pipe, according to the time of contact, according to the presence of bacteria, according to the volume of water, इन तमाम चीज़ों को कैलकुलेट जब हम करते हैं तो उसके बाद हम फिर अमाउंट ऑफ क्लोरीन या क्लोरामीन जो फॉर्म में हो वो हम ऐड करते हैं। अपने बड़ी से बीच में 4 बाल्टियां नहीं डाल देते पानी के बीच में। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जो कि वाटर प्योरिफिकेशन टैबलेट्स होती हैं,
वो एक बहुत छोटी सी टैबलेट होती है, बहुत छोटी सी, और उसमें साथ में लिखा हुआ होता है कि ये आपने 20 लीटर पानी के बीच में ऐड कर दिया, एक जग के बीच में या एक ग्लास के बीच में एक गोली नहीं डालनी, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हर चीज कैलकुलेटेड होती है कि कितने अमाउंट, कितना वॉल्यूम, कितना टाइम, कितना डिस्टेंस उसके बीच में वो एंटर करेगा, ठीक है। इसे कहते हैं टाइम ऑफ कांटेक्ट या ड्यूरेशन ऑफ या कांटेक्ट टाइम, ठीक है। अभी आपको बताती हूँ थोड़ा सा कांटेक्ट टाइम के बारे में, थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ, ठीक है। अच्छा, क्लोरामीन्स प्रोवाइड लॉन्गर लास्टिंग डिसइंफेक्शन एज द वाटर मूव्स थ्रू द पाइप्स टू द कंज्यूमर, ठीक है। वही वाली बात जो मैंने आपको की, तो क्योंकि स्टेबल कंपाउंड है तो ये ज्यादा देर तक पाइप में रहता है। अच्छा, देन क्लोरामीन इज एग्जिस्ट इन मोनोक्लोरामीन, डाइक्लोरामीन एंड ट्राइक्लोरामीन, ठीक है। मोनो का मतलब है वन, तो इसके बीच में आप देखें इसका फॉर्मूला NH2Cl, इसके बीच में वन सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन है, और जब अमोनिया NH3 होता है, ठीक है, तो NH3 में से वो एक H को हटाकर और एक क्लोरीन जो है वो उसके साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। अगर आप उसकी केमिकल बॉन्ड अगर आप उसका देखें तो उसके बीच में अमोनिया NH3 है, NH3 इज स्टेबल, लेकिन वो उसको ऑक्सीडाइज करता है, किस तरीके से, H उसका एक निकाल देता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन के दो मतलब होते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। एंड इस दोनों को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो एक हाइड्रोजन आयन वो अमोनिया में से खींच के निकाल देता है, उसकी जगह जाके एक क्लोरीन अटैच हो जाता है, तो ये मोनोक्लोरामीन बन जाता है। फिर डाइक्लोरामीन में क्या होता है, NH और 2Cl मॉलिक्यूल्स, तो NH में से 2H मॉलिक्यूल्स हटा के और 2H की जगह पर 2 क्लोरीन अटैच हो जाते हैं, इसको कहते हैं मोनोक्लोरामीन, सॉरी डाइक्लोरामीन, ठीक है, टू क्लोरीन्स। एंड देन ट्राइक्लोरामीन्स, और इसको सिंपली नाइट्रोजन क्लोरामीन भी कहते हैं। इसके बीच में क्या किया, अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो है वो हाइड्रोजन आयंस जो है तीनों के तीनों रिमूव कर देता है क्लोरीन, बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव, और उन तीनों की जगह पर खुद आकर अटैच हो जाता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा इसके बीच में तीनों के तीनों H खत्म हो गए, उसकी जगह पे 3 क्लोरीन आ गए, तो दिस इज नोन एज ट्राइक्लोरामीन और नाइट्रोजन ट्राइक्लोरामीन, ठीक है। Yes, ma'am. अच्छा जी, नाउ टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशन। अब क्लोरीनेशन तो आप कहेंगे एक ही टाइप की होती है, दिस इज सिंपली दी एडिशन ऑफ क्लोरीन, बट डिफरेंट पोटेंसीज की और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के बीच में जब होती है तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम उसे क्लोरीनेशन कहते हैं। So these are a few: plain chlorination, pre-chlorination, post-chlorination, double chlorination, super chlorination and dechlorination, ठीक है। इसको वन बाय वन हम करते हैं। प्लेन क्लोरीनेशन क्या होता है, सिंपल हमने क्लोरीन ऐड की, उसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, ठीक है। दिस इज नोन एज प्लेन क्लोरीनेशन। जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दी डिसइंफेक्टेंट टैबलेट्स की, तो आप क्या करते हैं, पानी को और किसी किस्म की कोई ट्रीट नहीं कर रहे होते, ये लोकल लेवल के ऊपर, ठीक है, या डोमेस्टिक लेवल के ऊपर, सिंपली क्लोरीन की टैबलेट बीच में डाल दी, कोई आगे पीछे और किसी किस्म की ट्रीटमेंट नहीं। सिमिलरली जब हम ग्राउंड वाटर, स्पेशली बाज़ औक़ात इन सर्टेन कंडीशन हम ग्राउंड वाटर की भी ट्रीटमेंट करते हैं, तो यूजुअली वो ट्रीटमेंट हम सिर्फ और सिर्फ क्लोरीनेशन करते हैं। क्लोरीनेशन में क्या करते हैं, सिंपली क्लोरीन कंपाउंड ऐड कर दिया, और हमने ना कोई फिल्ट्रेशन की, ना कोई और सेडिमेंटेशन, कुछ भी नहीं की ना करना, तो दिस इज नोन एज प्लेन क्लोरीनेशन, ठीक है। दैट इज क्लोरीनेशन विदाउट एनी अदर फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। अच्छा, अब क्लोरीन डोज, जिस तरीके से दवाई का एक डोज होता है जो आप खाते हैं, कभी आप कहते हैं कि 250 मिलीग्राम की आपने टेबलेट लेनी है, कभी आप कहते हैं आपने 500 मिलीग्राम की टेबलेट लेनी है, तो ये डोजेज होती है, ठीक है। सो इन टर्म ऑफ व्हेन वी आर डूइंग प्लेन क्लोरीनेशन, 0.5 to 1 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ क्लोरीन इज एडेड, ठीक है। मतलब 1 लीटर
1 लीटर पानी के बीच में 0.5 अप टू 1.5 to 1 मिलीग्राम ऑफ क्लोरीन, ठीक है, उसके बीच में ऐड कर देते हैं। यूजुअली दिस इज इन सॉलिड और पाउडर फॉर्म, ठीक है, जिस तरीके से टैबलेट्स होती हैं। अगेन मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। दिस इज इन सॉलिड फॉर्म। तो 1 लीटर के बीच में 0.5 मिलीग्राम जो है वो उसमें डाला जाता है इन टर्म्स ऑफ प्लेन क्लोरीनेशन। देन प्री क्लोरीनेशन, देयर आर डिफरेंट प्रोसेसेस जो आपने किया हुआ होगा। अच्छा, मैं जो ये कन्वेंशनल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बीच में हमने डिफरेंट प्रोसेसेस किए थे, तो उसमें एक कोगुलेशन होता है, ठीक है। तो इसमें आपको ये नहीं बताया गया, बट समटाइम्स कोगुलेशन से पहले क्लोरीनेशन भी की जाती है। कोगुलेशन से पहले क्लोरीनेशन कभी कभी, हमेशा नहीं, किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारे पास कोगुलेशन के बाद क्या होता है, पार्टिकल्स जो है वो प्रेसिपिटेट होकर सेटल डाउन हो जाते हैं। उसमें से जो बच जाता है वो फिल्ट्रेशन में, फिल्टर प्लांट में चले जाते हैं, फिल्टर टैंक में चले जाते हैं। तो फिल्ट्रेशन टैंक आपको अगर याद हो तो वो क्या करता है, उसके बीच में बायोमास बनता है जिसके ऊपर बैक्टीरिया जो है वो कॉलोनीज बनाते हैं। तो इस फिल्टर के ऊपर, फिल्ट्रेशन टैंक के ऊपर लोड कम करने के लिए, बैक्टीरिया का लोड कम करने के लिए हम कोगुलेशन से पहले थोड़ी सी डिसइंफेक्शन या क्लोरीनेशन भी कर देते हैं, ताकि काफी हद तक या कुछ हद तक बैक्टीरिया पहले से ही डिस्ट्रॉय हो जाए, ताकि फिल्ट्रेशन प्लांट के ऊपर, फिल्ट्रेशन टैंक के ऊपर ज्यादा बैक्टीरियल लोड ना आए, ठीक है। क्योंकि जितना ज्यादा लोड आएगा उतनी जल्दी वो क्लॉग हो जाएगा या उतनी उसकी एफिशिएंसी फिर नहीं रहेगी, उसमें से कोई ना कोई बैक्टीरिया बचा के जो है वो फिल्टर में से भी निकल जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं प्री क्लोरीनेशन, दैट इज क्लोरीनेशन बिफोर एनी अदर टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। यहाँ पर कोगुलेशन से पहले क्लोरीनेशन कर रहे हैं। सो इसके बीच में डोजेज देखें, 1 to 0.5 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है, सेम डोज है। 0.5 to 1 या 1 to 0.5 एक ही बात है, मिलीग्राम पर लीटर। देन पोस्ट क्लोरीनेशन, पोस्ट क्लोरीनेशन में है क्लोरीनेशन आफ्टर अदर ट्रीटमेंट्स, ठीक है। कोई डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हो सकती हैं, जैसे अगेन मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपके पास ट्रीटेड वाटर है, ठीक है, ट्रीटेड वाटर है, लेकिन आप उसको घर में यूज कर रहे हैं या किसी और जगह पे यूज कर रहे हैं, तो आप दोबारा से उसको क्लोरीनेट करना चाह रहे हैं। देन 0.25 to 0.5 मिलीग्राम, अब देखें पहले से आधा हो गया, 0.25 to 0.5 मिलीग्राम पर लीटर of dose is usually for post chlorination. Then double chlorination, yes, double chlorination उस वक्त किया जाता है जब हमारे पास कोई एपिडेमिक हो, जो हमारे पास सरफेस वाटर है वो बहुत ज्यादा कंटामिनेटेड आ रहा है, उसके बीच में पीछे से बहुत ज्यादा कंटामिनेशन है। फॉर एग्जांपल वहाँ पर कोई कॉलरा या टाइफॉइड के इंसिडेंसेस पीछे आ रहे हैं या समथिंग, तो हम फिर उसको डबल क्लोरीनेट करते हैं बिफोर एज वेल एज आफ्टर ट्रीटमेंट, ठीक है। जो डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं तो हम डबल कर सकते हैं। तो प्री क्लोरीनेशन प्लस पोस्ट क्लोरीनेशन इज नोन एज डबल क्लोरीनेशन। देन सुपर क्लोरीनेशन, ओके जी, सुपर क्लोरीनेशन जो है हम करते हैं जब हमारे पास इमरजेंसी के बीच में, इमरजेंसी सिचुएशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे फ्लड के दिनों के बीच में हमारे पास जो हमारे वाटर रेजर्वॉयर्स हैं वो ओवरवेल्म हो जाते हैं। ओवरवेल्म का मतलब है कि फ्लड अपने साथ हर किस्म की डेब्री, हर किस्म का जो है वो कंटेमिनेशन लेके आता है। तो हमारे पास इवन जो वाटर सप्लाई सिस्टम्स हैं वो सारे के सारे कंटेमिनेट हो जाते हैं, डबली कंटेमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। उस वक्त फिर हम फिर सुपर क्लोरीनेशन करते हैं। तो सुपर क्लोरीनेशन का मतलब क्या है, सिंपली के डोज हाई कर देते हैं। अब यहाँ पर देखें इसका डोज 10 मिलीग्राम पर लीटर, रूटीन में 0.5 होता है या 1 होता है, इवन 0.25 भी होता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे उसकी सुपर वैल्यू 10 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ क्लोरीन इज एडमिनिस्ट्रेड, ठीक है। दिस इज सुपर क्लोरीनेशन और हैवी क्लोरीनेशन। एपिडेमिक्स में, इमरजेंसीज में, फ्लड्स वगैरह में इसमें किया जाता है।
अच्छा, अब डीक्लोरिनेशन। डीक्लोरिनेशन जो है क्या होता है? डीक्लोरिनेशन उस वक्त होता है पहले जो हमारे पास पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं पानी के बीच में, उनको हमने किल करना है। उनको किल करने के लिए हमने बीच में क्लोरीन ऐड कर दी, ये तो हो गई क्लोरीनेशन। अब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये क्लोरीन हार्मफुल हो सकती है, तो हम क्लोरीन की क्वांटिटी को विद इन लिमिट्स या विद इन अलाउबल लिमिट्स लाने के लिए क्लोरीन की क्वांटिटी को डिस्ट्रॉय करना है, खत्म करना है। ठीक है, इसके लिए फिर जो प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं डीक्लोरिनेशन। ठीक है, नाम से ऑब्वियस है, आपको समझ आ रही होगी। सो द रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ क्लोरीन फ्रॉम वाटर इज नोन एज डीक्लोरिनेशन। तो आपके पास डीक्लोरिनेशन की कुछ टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं। फॉर एग्जांपल एरेशन। एरेशन जो है वो बहुत सारी तकलीफों का इलाज है। एरेशन में क्या होता है, आप लोगों ने, मैंने आपको एक वीडियो भी शायद दिखाई थी कि वाटर के बीच में एयर को एडिशनली ऐड किया जाता है बाय डिफ्यूजिंग एयर बबल्स इनटू पंप करते हैं, उसको डिफ्यूज करते हैं, छोटे छोटे माइन्यूट सुराख जो होते हैं पाइपों में, उनके बीच में से गुजारते हैं, तो एयर जो है वो वाटर के बीच में शामिल होना शुरू हो जाती है। और एयर के बीच में जो ऑक्सीजन होती है, बेसिकली दिस इज दी, ये जो है ऑक्सीजन, ये हर चीज को करते हैं कि न्यूट्रलाइज करती है। सो एरेशन, सोडियम बायोसल्फाइड, एडिशन ऑफ या सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये डिफरेंट किस्म के केमिकल्स हैं जो कि क्लोरीन जो है, एडिशनल अमाउंट ऑफ क्लोरीन जो कि पानी में प्रेजेंट होती है, तो वो आपको पता है, दोबारा बता रही हूँ, क्लोरीन जो है वो हाईली रिएक्टिव है। तो वो सोडियम बायोसल्फाइड, सोडियम थायोसल्फेट और सोडियम डाइऑक्साइड, ये हैवी मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो वो इनके साथ रिएक्ट कर देती है क्लोरीन, तो वो क्लोरीन जो है वो फिर स्टेबल कंपाउंड्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो दीज आर इन दिस वे द एडिशनल या एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन इज रिमूव्ड। मैम यहाँ पे अच्छा, ये जो आपने बता दी मैम डोजेस की, क्या होता है? यहाँ पे जो डोजेस की वीडियोस आपने बता दी तो बहुत स्मॉल है, क्योंकि वहाँ स्विमिंग पूल में तो मैम 4 से 5 डोजेस वो फेंकते हैं। देखें, क्लोरीन आपको मैंने बताया ना, क्लोरीन जो है वो कोई खाने की चीज नहीं है। क्लोरीन इज अ पॉइजन। ठीक है, तो इवन जिस तरीके से आप ड्रग्स यूज करते हैं, आप मेडिसिन यूज करते हैं, तो मेडिसिन आर पॉइजन बेसिकली, लेकिन एक माइन्यूट अमाउंट के बीच में अगर वो इस्तेमाल किया जाए तो वो पैथोजेंस के लिए पॉइजन है, ह्यूमन के लिए पॉइजन नहीं है। ठीक है, ह्यूमंस के लिए वो सेफ होता है। इसलिए इतनी स्मॉल अमाउंट के बीच में भी वो जो है वो बैक्टीरिया को किल करेगा, लेकिन ह्यूमन को इफेक्ट नहीं करेगा। इसलिए ये अमाउंट जो है वो स्मॉल रखी जाती है। और ये अमाउंट ऐसी तुक्के पे नहीं रखी गई, ये बाकायदा कैलकुलेटेड, पीछे बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये रखी जाती है। अच्छा, देन ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन। अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना है, और क्योंकि एज एन एनवायरमेंटल इंजीनियर आपने कितनी अमाउंट ऑफ क्लोरीन पानी के बीच में डालनी है, ये आपको ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन से पता चलेगा। ठीक है, ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन हर वाटर सैंपल के लिए अलग अलग हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बाकायदा एक केमिस्ट्री है, डिटेल्ड केमिस्ट्री है, और इसको समझना उसके लिए जरूरी होता है। अच्छा, basically break point chlorination is a technique used to remove combined chlorine by adding free available chlorine। अब ये इसका क्या मतलब है सेंटेंस का? चलें, अब मैं पहले एक दफा रीड करती हूँ फिर आपको बताती हूँ। टू रीच ब्रेक पॉइंट sufficient chlorine must be added to the pool of water, of course, to raise the free available chlorine level to 10 times the amount of combined chlorine. Break point chlorination is the point where the demand for chlorine has been fully satisfied in terms of chlorine addition to the water. In other words, the chlorine has completely reacted with other pollutants, leaving zero chlorine residue. ठीक है,
ये आपकी बॉटम लाइन है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखें, आपके पास पोल्यूशन है वाटर के बीच में, ठीक है, पोल्यूशन को आपने रिमूव करना है। तो पोल्यूशन जब आपने रिमूव करने के लिए क्लोरीन डाली, तो वो सारी की सारी जो है वो क्लोरीन सारी की सारी पोल्यूशन तो रिमूव हो गई। उसके बावजूद भी अगर आपके पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्लोरीन बाकी बच जाती है, तो जिस तरीके से अभी आपने कहा कि वो हार्मफुल होती है, बिल्कुल होती है। तो ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन या ब्रेक पॉइंट क्लोरीन हमारे पास ऐसे काइनेमेटिक्स हैं जिसके साथ हम थ्योरेटिकली ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने अमाउंट ऑफ क्लोरीन हम डालेंगे तो पहले वो पोल्यूटेंट को खत्म करेगी और उसके बाद वो दूसरे जो केमिकल्स प्रेजेंट हैं उनके साथ कंबाइन होके एक स्टेबल कंपाउंड बना लेगी। वो फिर क्लोरीन नहीं रह जाएगी, ठीक है। जैसे होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है वो हमारे पास वो क्लोरीन नहीं होती, हालांकि उसके बीच में सोडियम भी होता है। सोडियम क्लोराइड वैसे होता क्या है बाय द वे? नमक। 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 हम नमक रोजाना खाने में डालते हैं, ठीक है। रोजाना खाने में हम नमक डालते हैं, मतलब हम रोजाना क्लोरीन खा रहे हैं? नहीं, इसके बीच में फिर क्लोरीन की प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं। ये फिर एक नया कंपाउंड बना देता है, बिकॉज दिस इज केमिकली कंबाइंड। जैसे ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, लेकिन वो केमिकली जब कंबाइन होते हैं तो वो वाटर बना देते हैं। तो सिमिलरली जब सोडियम और क्लोरीन, ये तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड जो है वो एक स्टेबल कंपाउंड है विच हैज प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम क्लोरीन एज वेल एज सोडियम, ठीक है। तो ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन के बीच में यही होता है कि हमने क्लोरीन ऐड की, ठीक है, क्लोरीन ऐड की, फ्री अवेलेबल क्लोरीन, उसके बीच में जितने भी पोल्यूशन हैं पोल्यूशन को खत्म किया, फिर उसके बीच में क्लोरीन जो है वो स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट होगी तो पानी के बीच में हमारे पास डबल एक्शन हो गया। एक तो ये कि पोल्यूशन खत्म हो गई, दूसरी ये कि क्लोरीन भी खत्म हो गई, ठीक है। और ये होता है जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ क्लोरीन विच मस्ट बी एडेड, ना उससे कम हो ना उससे ज्यादा हो। तो हम उसकी हम थ्योरेटिकल वैल्यू मालूम करते हैं, और वो थ्योरेटिकल वैल्यू हम कैसे मालूम करते हैं? ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन से मालूम करते हैं। अब मैं आपको इसकी काइनेमेटिक्स बताती हूँ। अच्छा, इस डायग्राम को थोड़ा सा नॉट डायग्राम बट ग्राफ, इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। बहुत आसान है, कोई भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पर आप देखते जाएं, हमारे पास ऑन एक्स एक्सिस हमारे पास क्लोरीन डोज है, ठीक है, और ऑन वाई एक्सिस हमारे पास रेजिडुअल क्लोरीन है। रेजिडुअल क्लोरीन का क्या मतलब होता है? जो क्लोरीन पीछे बाकी बच जाती है, ठीक। अच्छा, अब एट पॉइंट जीरो अगर क्लोरीन डोज भी जीरो है एंड रेजिडुअल भी जीरो है ऑफ कोर्स, तो हम क्लोरीन ऐड करना शुरू करते हैं। जब हम क्लोरीन ऐड करते हैं तो शुरू वाली क्लोरीन, यहाँ पर आप देखें, सारी की सारी क्लोरीन डोज ऐड हो रही है, लेकिन क्लोरीन रेजिडुअल जीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि सारी की सारी क्लोरीन कहीं पर कंज्यूम हो रही है। कहाँ पर कंज्यूम हो रही है? यहाँ पर। डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरीन रेजिडुअल बाय रिड्यूसिंग द कंपाउंड्स। कौन से वाले कंपाउंड्स? पोल्यूटेंट्स के, ठीक है। ये पोल्यूटेंट्स को किल कर रही है। ये वाली क्लोरीन शुरू वाली जो हमने क्लोरीन ऐड की, वो सारी की सारी कंज्यूम हो रही है पोल्यूटेंट को रिड्यूस करने में, ठीक है, या पोल्यूटेंट को खत्म करने में। तो आफ्टर सर्टेन टाइम इसमें क्या होता है, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया वगैरह चूंकि ऑर्गेनिक या लिविंग सेल्स होते हैं, उनके बीच में नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं। तो जब काफी हद तक उसको डिस्ट्रॉय कर दिया उसने बैक्टीरिया को, तो उसके बाद जो उसमें से नाइट्रोजनस कंपाउंड्स मिलते हैं उनके साथ ये क्लोरीन कंबाइन होना शुरू कर देती है, ठीक है। आहिस्ता 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 कंबाइन होना शुरू हो जाती है क्लोरीन। देन
क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरो ऑर्गेनिक एंड क्लोरामीन कंपाउंड्स। ठीक है, जो ऑर्गेनिक्स होते हैं बैक्टीरिया के, उसके साथ ये कंबाइन होती है और नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होती है और क्लोरामीन बनाना शुरू कर देती है। इट मीन्स के हमारे पास क्लोरीन पानी में मौजूद होती है इन टर्म्स ऑफ कंबाइंड क्लोरीन। ठीक है, देयरफॉर क्लोरीन रेजिडुअल कीप्स इज स्टार्टिंग टू बिल्ड अप। ठीक है, क्लोरीन हमारे पास बनना शुरू हो गई इन कंबाइंड फॉर्म। ठीक है, ओहो अच्छा, कंबाइंड फॉर्म में क्लोरीन बनना शुरू होगी। देन अ पॉइंट इज जो है रीच्ड व्हेन दिस क्लोरामीन्स एंड क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब किस तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, दिस इज अनदर स्टोरी। ठीक, उसकी डिटेल में आप नहीं जाएंगे इस वक्त, बट सिंपली ये है कि वो हम आप डिस्ट्रॉय होना शुरू कर देते हैं। तो फिर क्या होता है, फिर रेजिडुअल क्लोरीन की वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। तो अब हमारे पास दो चीजें हुई, पहले हमने पोल्यूटेंट को खत्म किया, फिर जो बीच में क्लोरीन बन गई थी, क्लोरीन जो एडिशनल ऐड होना शुरू हो गई थी वो भी खत्म हो गई। ठीक है, वो कैसे खत्म हुई, ये हमारे पास फ्री अवेलेबल क्लोरीन हम मजीद ऐड कर रहे हैं। देखें बिटवीन 5 to 7 हम क्लोरीन ऐड किए जा रहे हैं। तो ये फ्री अवेलेबल क्लोरीन इस वाले क्लोरामीन के साथ ऐड कर हो जाती है और वो इसको ब्रेक डाउन कर देती है। ठीक है, या यूं कह लें कि न्यूट्रलाइज कर देती है। इस वजह से रेजिडुअल क्लोरीन फिर नीचे आना शुरू कर देती है। फिर एक पॉइंट आता है कि जो हमारे पास कंबाइन, हम अब यहाँ पर देखें क्लोरीन हम इंक्रीज करते जा रहे हैं। फिर एक पॉइंट आता है कि फ्री अवेलेबल क्लोरीन जो है वो कंबाइन अवेलेबल क्लोरीन से ज्यादा हो जाती है, क्योंकि कंबाइन खत्म हो गई। तो फिर जो है वो रेजिडुअल क्लोरीन बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन नाउ दिस इज फ्री क्लोरीन रेजिडुअल्स। ठीक है, थोड़ा सा बीच में कंबाइन में भी होता है, लेकिन यहाँ पर आप देखें फॉर्मेशन ऑफ फ्री क्लोरीन एंड प्रेजेंस ऑफ क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर नॉट डिस्ट्रॉयड बाय दिस प्रीवियस एक्शन। ठीक है, तो इसके बीच में जो रेजिडुअल क्लोरीन है, रेजिडुअल क्लोरीन के बीच में दो चीजें हमारे पास बच गई, थोड़ी सी कंबाइन और थोड़ी सी फ्री रेजिडुअल क्लोरीन। तो फिर हमारे पास क्लोरीन रेजिडुअल जो है वो बढ़ना शुरू कर देता है, विच वी डू नॉट वांट। ये वाला जो पोर्शन है, ये जो आपको ब्लू एरो नजर आ रहा है, इसके बाद वाली जो क्लोरीन बढ़ती जा रही है, ये हमें नहीं चाहिए। Therefore, this is the amount of chlorine dose, यहाँ पर जो 7 पे नजर आ रहा है, this is the amount of chlorine dose जो ये वाला सारा प्रोसीजर करेगी यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये A, B और C पॉइंट्स तक ये वाला केमिकल एक्शन उसके बीच में होगा। ये वाला हमें नहीं चाहिए जो आखिर वाला है, इसलिए हम जो अमाउंट ऑफ क्लोरीन है वो ये वाली यूज करेंगे 7, जो कि यहाँ तक कंप्लीट कर दे प्रोसेस। तो ये वाला जो एरो आपको नजर आ रहा है सी पॉइंट पर, जहाँ पर ये 3 प्रोसेसेस हुए हैं, मतलब सबसे पहले पोल्यूटेंट खत्म हुआ, फिर कंबाइंड क्लोरीन बन गई, फिर कंबाइंड क्लोरीन खत्म हुई। ठीक है, और फ्री क्लोरीन बनने से पहले पहले जो हमारी क्लोरीन डोज थी, बस वो डोज हमें जो है ऐड करनी है पानी के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल 7 मिलीग्राम पर लीटर। अगर हम 6 मिलीग्राम पर लीटर करेंगे तो हमारे पास यहाँ तक प्रोसेस होगा, मतलब हमारे पास कंबाइंड क्लोरीन थोड़ी सी अभी भी बच जाएगी। ठीक है, लेकिन जब हम 7 करेंगे तो हम जस्ट द राइट अमाउंट, वो बैलेंस हो जाएगा, तमाम किस्म की क्लोरीन जो है वो जो है डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, लेकिन उसके बीच में जो थोड़ी सी अमाउंट देखें, ये जो है यहाँ पर आ गया, ये देखें, तो कंबाइंड रेजिडुअल थोड़ा सा बच जाएगा बस। और अगर हमें 8 कर दिया या 9 कर दिया या 10 कर दिया तो फिर हमारे पास फ्री रेजिडुअल क्लोरीन बचना शुरू हो जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते हैं। ठीक है, कंबाइंड रेजिडुअल जो है वो स्टेबल कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन बन जाएंगे। ठीक है, कुछ समझ आई थोड़ी बहुत?
मैम थोड़ा कसर इस पर घुमाए तो ताकि हम इजीली समझ जाए, इस तरह तो मुश्किल है मैम ग्राफ। ग्राफ मुश्किल है? नहीं है मुश्किल। आप जो है अपने हाथ से मुश्किल ग्राफ नहीं है, मुश्किल नहीं है लेकिन जब एरो घुमाए आप तो फिर आसानी से समझ आ जाता है मैम, इस तरह थोड़ा मुश्किल होता है। चलिए, ये मैं आपको दोबारा भी क्लास में बता दूंगी। जब हम फिजिकल क्लास मैम अटेंड करेंगे इसमें ना, तो मैं एक्सक्यूज उसमें भी बता दूंगी जी। इसमें ये 3 पॉइंट जो है ABC ये अलग अलग थोड़ा एक्सप्लेन कर ले A4 पेज पे या कुछ अच्छा, एक बात करे तो वो शेयर कर ले तो वो फिर बहुत आसान हो जाएगा। इस तरह चलिए ग्राफ में मैं, तो आप तरीके से समझा दे लेकिन अभी बाद में ये भूल जाएगा। अच्छा आपको एक बात बताऊं, आपने ये ग्राफ याद करना है। ये ग्राफ आपने हाथ के साथ बनाना है, और इसके बीच में, ग्राफ के बीच में डिफरेंट, देखें इंजीनियर क्या होता है, उसको ग्राफ तो पढ़ने आने चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी एक्चुअल इंजीनियरिंग है। वरना आप इजी है वहां मैम, पर हो जो है, जाएगा। वहां पर आपका ऑपरेटर बैठा होगा, आपने उसको कह देना है 10 मिलीग्राम पर लीटर डाल देना, और इतने टाइम के लिए डाल देना। ठीक है, तो वो तो डाल देगा ब्लाइंडली, लेकिन 10 मिलीग्राम आया किधर से, ये एक इंजीनियर का काम है। ठीक है, तो आपने ग्राफ्स टेबल्स पढ़ने होते हैं, उनको समझना होता है, इसलिए ये वाला ग्राफ इंपॉर्टेंट है समझना। खैर थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, पहली दफा किसी को समझ नहीं आता, लेकिन ABC मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। क्लोरीनेशन क्या होता है? क्लोरीन हमने ऐड की, और जो पोल्यूटेंट है वो उसको डिस्ट्रॉय करता है, क्लोरीन। ठीक है, तो शुरू में हम आपस चले, सपोज एक बाल्टी है, उस बाल्टी के बीच में एक पानी है जिसको हम क्लोरीनेशन कर रहे हैं, उसके बीच में हमने 1 मिलीग्राम पर लीटर क्लोरीन ऐड किया, या नहीं चले हमने इसमें कुछ क्लोरीन ऐड कर दिया, थोड़ी सी 10 मिलीग्राम फॉर एग्जाम्पल कर दिया। ठीक है, तो अब शुरू के बीच में आपके पास 1 मिलीग्राम जो है वो कंज्यूम हो जाएगी वाइल ओवरकमिंग द पोल्यूशन। तो हमारे पास बाकी कितनी बच गई? 9 मिलीग्राम। ठीक है, अब 9 मिलीग्राम में से कुछ जो है वो, अच्छा एक चीज याद रखें, ये जो हमने 10 मिलीग्राम एंटर किया, ऐड की है, ये हमने फ्री अवेलेबल क्लोरीन की फॉर्म में ऐड किया। ठीक है, हमने फॉर एग्जांपल ब्लीच डाला पानी के बीच में, पानी के बीच में ब्लीच डाल दिया, तो थोड़ा सा ब्लीच जो है वो खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा वाइल ओवरकमिंग द पोल्यूशन, क्योंकि उसने पोल्यूशन को जो है डिस्ट्रॉय करना है। फिर उसके बीच में जो थोड़ा सा और कंज्यूम हो जाएगा किस चीज में, वो कंबाइंड जो है वो क्लोरो ऑर्गेनिक जो बीच में जब हमने डिस्ट्रॉय किया बैक्टीरिया को, तो उसमें से नाइट्रोजन, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन जो है वो मिलती है, तो नाइट्रोजन के साथ वो कंबाइन होना शुरू हो जाती है क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन रिएक्टिव है, वो खुद ब खुद कंबाइन होना शुरू हो जाएगी। तो क्या होगा, मजीद थोड़ी सी और फ्री अवेलेबल क्लोरीन जो है जो हमने ऐड की थी वो और कम होना शुरू हो गई। फॉर एग्जांपल उसके बीच में 5 मिलीग्राम कम हो जाते हैं, तो 1 मिलीग्राम पहले कंज्यूम हो गया, 5 मिलीग्राम और कंज्यूम हो गया। तो जो है फिर क्या हुआ कि हमारे पास डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरामीन्स एंड क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक, अब जो हमारे पास क्लोरीन बिल्टअप हो गई है वो मजीद कम होना शुरू हो जाएगी जब क्लोरामीन्स को भी ये डिस्ट्रॉय करना शुरू करेगी। देखें क्लोरामीन जो है वो नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं ऑफ क्लोरीन, वेयर एज फ्री अवेलेबल क्लोरीन जो है वो हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाले होते हैं, जैसे ब्लीच। ठीक है, तो ब्लीच जो है वो मजीद, ब्लीच ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो क्लोरामीन या ऑर्गेनिक आपके पास जो क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड बने हुए होते हैं वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, उसके बीच में क्या हुआ, मजीद थोड़ा सा ब्लीच जो है वो कंज्यूम होना शुरू हो गया, तो होते 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 हमारे पास 10 में से 7 मिलीग्राम तो हमने इस्तेमाल कर दिए क्लोरीन के, बाकी रह गए 3 मिलीग्राम्स। अब जो 3 मिलीग्राम्स बच गए वो हमारे पास फ्री अवेलेबल क्लोरीन हो जाएगा, जो पानी के बीच में बाकी बच जाएगा। ठीक है, जो कि हमें पानी के बीच में नहीं चाहिए। हमने सिर्फ ये प्रोसीजर करना है कि A, B और C तक
बैक्टीरिया भी मर जाए और कंबाइंड क्लोरीन भी मर जाए और फ्री क्लोरीन अभी ना बननी शुरू हो। तो एट 7 हमारे पास जो है वो ये वाले सारे प्रोसीजर्स खत्म हो जाते हैं 7 मिलीग्राम। अगर हमने 10 डाला हुआ है 10 मिलीग्राम तो 3 मिलीग्राम हमारे पास फालतू पानी के बीच में रह जाएगा जो कि नहीं चाहिए हमें। तो फिर हम यूं करेंगे, हमने फिर ये एक रिपोर्ट लिखनी है कि इसके बीच में क्लोरीन डोज 10 मिलीग्राम नहीं होना चाहिए था, वो गलत है, 7 मिलीग्राम होना चाहिए। हम 7 मिलीग्राम डालेंगे तो फिर वो फ्री अवेलेबल क्लोरीन जो है वो उसके बीच में पानी के बीच में नहीं रहेगी, जो कि रिएक्टिव होती है, जो कि डेंजरस होती है। ठीक है, तो 7 तक हमारे पास जो क्लोरीन आखिर में बच भी गई तो वो क्लोरीन के स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, देयरफॉर एट पॉइंट सी वी गॉट 7 मिलीग्राम विच इज द ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। तो ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन ने हमें एक डोज दे दिया, एक डोज की वैल्यू दे दी विच इज फॉर एग्जांपल 7। अभी जो हमने कर रहे थे प्रोसीजर, इसके 7 मिलीग्राम जो है पर लीटर आपने पानी के बीच में ऐड करना है। 10 मिलीग्राम किया तो आपके पास 3 मिलीग्राम फ्री फॉर्म में पानी के बीच में रह जाएगा जो कि पॉइजनस है। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर Yes. हुआ? यस मैम, अभी बिल्कुल। यस थैंक यू। अच्छा, इस चीज को आपने लेक्चर अभी खत्म होगा ना तो इस चीज को दोबारा से आपने रिवाइज करना है फौरन। ये भी आपके दिमाग में फ्रेश है, बाद में भूल जाएगा कि ये ABC का मतलब क्या है। यस मैम। अच्छा जी, so the advantages of breakpoint chlorination, it oxidizes। देखें अब यही बात जो अभी हमने की है इसको प्रॉपर तरीके से बता देते हैं। it oxidizes complete organic matter, dissolves ammonia and other reducing particles। ठीक है, क्या हुआ, ऑर्गेनिक मैटर भी खत्म हो गया जो कि बैक्टीरिया वगैरह होता है, और जो इसमें अमोनिया क्या था, कंबाइंड अवेलेबल क्लोरीन की फॉर्म में। ठीक है, क्लोरामीन जो होता है वो अमोनिया की कॉम्बिनेशन होती है ना यूजुअली। तो डिजोल्व अमोनिया भी खत्म हो गया पानी के बीच में से, और जितने भी बाकी पार्टिकल्स थे उनके साथ क्लोरीन ने रिएक्ट करके और फिर स्टेबल कंपाउंड बना दिए। ठीक है, then also it removes color which is due to the presence of organic compounds। again ऑर्गेनिक कंपाउंड खत्म कर दिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है मुख्तलिफ एनिमल सेल्स भी हो सकते हैं, प्लांट सेल्स भी हो सकते हैं, उनकी वजह से कलर पिगमेंटेशन पानी में आती है, उसको भी ये क्लोरीन खत्म कर देता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि क्लोरीन को ब्लीच के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ब्लीच क्या होता है, किसी चीज पे दाग लग जाए तो दाग जो है वो कलर होता है बेसिकली, उसको ये खत्म कर देता है। इसी तरीके से इट डिस्ट्रॉयज ऑलमोस्ट 100% ऑल द बैक्टीरिया। ठीक है, तकरीबन 100% ऑफ बैक्टीरिया को क्लोरीन डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड इट रिमूव्स बैड ऑर्डर एंड बैड टेस्ट। ठीक है, ऑर्डर एंड टेस्ट वो भी हमारे पास डिजॉल्व या सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज की वजह से होता है। देन इट कैपेबल ऑफ रिमूविंग कलर एंड टेस्ट एंड ऑर्डर एज वेल। अच्छा जी, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन ने आपको क्या दिया था कि आपको कितनी क्लोरीन जो है वो जरूरत है उसकी। ठीक है, दिस इज नोन एज क्लोरीन डिमांड। अच्छा, अब क्लोरीन डिमांड के पीछे मैंने भी आपको बताया था कि कुछ तो बैक्टीरिया वगैरह को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्लोरीन चाहिए, थोड़ी सी हमें रेजिडुअल क्लोरीन भी चाहिए होती है। रेजिडुअल क्लोरीन पाइप के बीच में थ्रू आउट द कन्वेंस हमें चाहिए होती है, जो कि एडिशनल बीच में पोल्यूशन हो रही हो, कंटेमिनेशन हो रही हो, उसे खत्म करने के लिए। सो टोटल क्लोरीन डिमांड इज क्लोरीन एडेड जो हमने कैलकुलेट की अकॉर्डिंग टू ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। ठीक है, माइनस दी क्लोरीन रिमेनिंग। ठीक है, क्लोरीन रिमेनिंग या रेजिडुअल क्लोरीन। ठीक है, और ये होती क्या है, क्लोरीन डिमांड इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ क्लोरीन एडेड टू वाटर और वेस्ट वाटर एंड द अमाउंट ऑफ रेजिडुअल क्लोरीन रिमेनिंग आफ्टर अ गिवन कॉन्टैक्ट टाइम। अब कॉन्टैक्ट टाइम क्या होता है,
देखें, जब हम एक दवाई खाते हैं तो दवाई असर करने में भी 15 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा लेती है। तो ये उसका कांटेक्ट टाइम होता है कि जितने टाइम के बीच में केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होता है तो उतना टाइम चाहिए होता है उसको अपना असर करने में। सेम थिंग ओवर हियर कि क्लोरीन को पानी में जब हम डालेंगे तो ये जितने भी रिएक्शन आपने देखे हैं पीछे क्लोरीन ब्रेक पॉइंट के बीच में, तो उसको होने में थोड़ा टाइम लगता है एंड मिनिमम इट शुड बी 30 मिनट्स। इसको कहते हैं टाइम ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, या कांटेक्ट टाइम। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बीच में हम पानी को कम से कम 30 मिनट्स तक क्लोरीन ऐड करने के बाद रखते हैं। 30 मिनट्स के बीच में ये सारे प्रोसेसेस कंप्लीट होते हैं, जिसके बीच में पोल्यूशन भी डिस्ट्रॉय होता है और बाकी कंबाइन और क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड सारा कुछ डिस्ट्रॉय होते हैं, ठीक है। तो इट शुड बी एटलीस्ट 30 मिनट्स। सो 30 मिनट्स के लिए हमें जितनी क्लोरीन चाहिए वो कितनी होगी, क्लोरीन एडेड माइनस क्लोरीन रिमेनिंग, ठीक है, या रेजिडुअल क्लोरीन। अब क्लोरीन डिमांड, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखें, क्लोरीन डिमांड में चेंज विद डोजेज, टाइम, टेम्परेचर, पीएच एंड नेचर एंड अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज इन वाटर, ठीक है। कभी हम 0.5 मिलीग्राम पर लीटर ले रहे हैं, कभी हम 5 ले रहे हैं, कभी हम 1 ले रहे हैं, कभी हम 10 ले रहे हैं। हम क्यों डिफरेंट ले रहे हैं? क्योंकि हमारे पास कंडीशंस डिफरेंट है, ठीक। क्यों? हमारे पास डोजेज है वो डिफरेंट है, टाइम, पीएच, टेम्परेचर डिफरेंस हो सकता है, और वेरी इंपॉर्टेंटली उसके बीच में जो बैक्टीरियोलॉजिकल कंटेमिनेशन है वो भी डिफरेंट हो सकती है। ज्यादा बैक्टीरिया, ज्यादा हमारे पास क्लोरीन डिमांड होगी, कम बैक्टीरिया हमारे पास कम क्लोरीन डिमांड होगी ऑब्वियसली। अच्छा, रेजिडुअल क्लोरीन, रेजिडुअल क्लोरीन इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हमारे पास रेजिडुअल क्लोरीन की जरूरत होती है पाइप के बीच में। तो रेजिडुअल क्लोरीन is the low level amount of chlorine remaining in the water after a certain period or contact time after its initial application, ठीक है। It constitutes an important safeguard against the risk of subsequent microbial contamination after treatment, ठीक है। जो मैंने भी आपको बताया कि ट्रीटमेंट के बाद या क्लोरीनेशन की ट्रीटमेंट के बाद भी इसके बीच में कंटेमिनेशन के चांसेस होते हैं, तो इसके लिए उसके लिए सेफ गार्ड के तौर पे ये काम करता है। दिस इज यूनिक एंड सिग्निफिकेंट बेनिफिट फॉर पब्लिक हेल्थ। Then the minimum recommended WHO value for the free chlorine residual in treated drinking water is 0.2 milligram per liter, ठीक है। मतलब 0.2 मिलीग्राम पर लीटर क्लोरीन जो है वो अगर आप तक पहुंचती है देन इट इज सेफ टू ड्रिंक, और इतनी अगर पानी में रहे तो वो पोल्यूटेंट को भी डिस्ट्रॉय कर देती है, बट एट द सेम टाइम दिस इज नॉट हार्मफुल टू ह्यूमंस यूज, ठीक है। तो WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने ये गाइडलाइन दी हुई है कि 0.2 मिलीग्राम क्लोरीन इतनी ऐड करें कि सारी ट्रीटमेंट खत्म हो जाए, पाइप में से गुजर जाए, उसके बाद आपके घर तक अगर अप टू 0.2 मिलीग्राम, जरूरी नहीं कि 0.2 ही हो, 0.1 भी हो सकती है, 0.01 भी हो सकती है, बट एट द मोस्ट दिस इज लिमिट। तो 0.2 मिलीग्राम पर लीटर जो है वो इट्स ओके। देन CDC है सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल ऑफ USA, ठीक है। अमेरिकन सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल recommends not exceeding, ये अमेरिकन है, अच्छा ये डिफरेंट कंट्रीज का होता है, पाकिस्तान का भी हो सकता है, CDC पाकिस्तान में भी है बाय द वे। CDC recommends not exceeding 2 milligrams per liter due to taste concerns and chlorine residual decays over time in stored water। अच्छा, एक तो आपको पता है कि क्लोरीन की अपनी स्मेल एंड टेस्ट होती है, अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो हेल्थ इश्यूज के अलावा वो टेस्ट और ऑर्डर के लिए भी वो एस्थेटिकली भी वो इतनी पसंदीदा नहीं होती है। और एक और चीज़, जब हमारे पास ओवरहेड वाटर रिजर्वॉयर्स होते हैं उसके बीच में जब पानी रिजर्व किया जाता है तो वो पानी कई घंटों तक, रादर कई दिनों तक रिजर्व किया जाता है,
ठीक है, तो उसके बीच में भी कंटेमिनेशन के चांसेस होते हैं। सो हमारे पास इन दैट केस 2 मिलीग्राम पर लीटर तक हमारे पास रेजिडुअल क्लोरीन जो है वो अलाउबल लिमिट है, लेकिन उससे ज़्यादा इसलिए नहीं कि एक तो वो एस्थेटिकली ठीक नहीं है, ठीक है, और आपको पता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की डिफरेंट रिकमेंडेशंस होती हैं। तो WHO की रिकमेंडेशन 0.2 मिलीग्राम है और CDC की 2 मिलीग्राम पर लीटर है, ठीक है। यस मैम। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है क्लोरीन डीके। अब क्लोरीन डीके, डीके का क्या मतलब है? डीके का क्या मतलब होता है उर्दू में? खत्म करना, खत्म हो जाना, तबाह हो जाना, Composition. ठीक है, खत्म हो जाना या तबाह हो जाना। तो जैसे जैसे पानी के बीच में देखें ट्रीटमेंट हुई, पानी के बीच में एक रेजिडुअल क्लोरीन था उस टाइम, एक्स्ट्रा क्लोरीन, जो कह रहे हैं एक्स्ट्रा क्लोरीन, वो पानी के पाइप के बीच में आ जाता है पानी, ठीक है, ट्रेवल करता है, जैसे जैसे वो ट्रेवल करता जाता है वैसे वैसे क्लोरीन खुद ब खुद डीके भी होती जाती है, क्योंकि क्लोरीन हाईली रिएक्टिव है, इस चीज को याद रखें बार बार, हाईली रिएक्टिव है, वो अकेली आयोनिक फॉर्म में रह ही नहीं सकती है, ठीक है, तो वो ऐसा ऐसा डिके होती रहती है। डिके होने की रीजंस कौन कौन सी हैं? नंबर 1, क्लोरीन रिएक्शन विद ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स इन वाटर, ठीक है, पानी के बीच में सारे केमिकल्स खत्म तो नहीं होते ना, उसमें कुछ हार्डनेस भी हो सकती है, अदरवाइज भी पानी के बीच में कुछ नेचुरली कंपाउंड हो सकते हैं। देन क्लोरीन रिएक्शन विद बायोफिल्म एट द पाइप वॉल, ओके, पानी का जो पाइप वॉल है, पानी का पाइप है, उसकी जो अंदर से वॉल होती है उसके ऊपर बैक्टीरिया बायोफिल्म बना लेता होता है, ये नेचुरली उसके ऊपर बन जाती होती है, तो उसको ओवरकम करने के लिए भी क्लोरीन जो है वो डिके हो रही है। देन क्लोरीन कंजम्पशन ड्यू टू करोजन ऑफ पाइप वॉल, ठीक है, उसके ऊपर करोजन होती है, करोजन आपको पता है आयरन के कंपाउंड होते हैं, फेरिक सल्फेट हो गया या इस तरीके से, और तो वो भी क्लोरीन को डिस्ट्रॉय करता है। तो इन तमाम रीजंस की वजह से टाइम के साथ साथ जैसे जैसे पानी के पाइप के बीच में क्लोरीन प्लस वाटर जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं, तो क्लोरीन खुद ब खुद डिके होना शुरू हो जाती है, ठीक है, तो ड्यू टू दीज रीजंस। सो let me read. Chlorine disappears due to its reaction with compounds present in water and also with the pipe wall. Thus, chlorine concentration in water keeps on reducing and ultimately all the chlorine is consumed. ठीक है, एक ये भी एक टेक्निक है, आप यूं कह लें, या नॉट अ टेक्निक बट ए नेचुरल वो होता है कि आप बीच में रेजिडुअल क्लोरीन इस तरीके से आप डालते हैं कि वो थ्रू आउट द कन्वेयंस वो डीके जो होती रहती है, डीके भी हो जाए और एट दी कंज्यूमर एंड वो हमारे पास एक मिनिमम अलाउबल लिमिट, मैक्सिमम अलाउबल लिमिट तक भी मौजूद है। तो उससे क्या होगा कि जो ज़ाया होने वाली है वो ज़ाया भी हो जाएगी और जो बाकी बच जाएगी वो क्लोरिनेशन साथ साथ क्लोरिनेशन या डिसइंफेक्शन वो करती रहेगी, ठीक है। सो दिस फेनोमेना ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ क्लोरीन थ्रू द कन्वेयंस पाइप इज नोन एज क्लोरीन डीके। अच्छा जी, अब हमने मेजर डिसइंफेक्शन तो पढ़ लिया, दैट वाज क्लोरिनेशन। उसके अलावा हमने एक दो और भी चीजें पढ़ी थी, एक तो था ओजोनेशन। ओजोनेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन, ओजोन इज ऑक्सीजन कंपाउंड विद 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि हम डिफरेंट किस्म की उसके लिए एरेशन करते हैं। तो एरेशन बेसिकली क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही होती है। तो हम जब वो होते हैं 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स O2। तो अगर हमने जब एक हाई वैल्यू ऑफ डिसइंफेक्शन करना हो तो हम 2 की बजाय 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ उसके साथ रिएक्ट करते हैं पोल्यूशन को।
तो ज्यादा ऑक्सीडेशन होती है। ज्यादा ऑक्सीडेशन होने की वजह से ज्यादा डिस्ट्रक्शन ऑफ पोल्यूशन होती है। ठीक है, तो दिस इज एन एडवांस्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ वेरी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज एबल टू अटैक अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, इसी तरीके से ओजोनेशन भी एक हमारे पास टेक्निक है डिसइंफेक्शन की। यूवी रेडिएशन और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इसके बारे में हमने काफी कुछ पढ़ा हुआ है। Ultraviolet radiation is a water treatment technique and is very effective disinfectant due to its strong germicidal ability. आप लोगों को पता होगा कि ये मेडिसिन के या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं जैसे डेंटिस्ट वगैरह के पास, तो उनके पास एक यूवी अवन्स होते हैं, उसके बीच में छोटे छोटे से अमन होते हैं, जैसे बिजली के अवन होते हैं, तो वो यूवी रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं। तो अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स, डेंटिस्ट जो है या सर्जन्स अपने इंस्ट्रूमेंट्स उनके बीच में डाल देते हैं और वो उसको ऑन करें तो वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उसके ऊपर डालते हैं, जिसकी वजह से जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके ऊपर जितने भी बैक्टीरियाज और वायरसेस और वो हो जाते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइज हो जाता है। ठीक है, UV disinfects water containing bacteria and viruses and can be very effective against protozoa. अच्छा, जो प्रोटोजोआ होता है ना वो बाज़ औक़ात बैक्टीरिया से भी ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है, क्योंकि बैक्टीरिया की सेल वॉल बहुत कमज़ोर होती है, बैक्टीरिया बहुत फ्रेजाइल सी चीज़ होती है, लेकिन प्रोटोजोआ एज कम्पेयर टू इट इज़ वेरी स्टबर्न। ठीक है, प्रोटोजोआस जो है वो एनिमल्स होते हैं जो कि बाकायदा आपको अंडर माइक्रोस्कोप मूव करते हुए नजर आते हैं, तो दीज आर मोर स्टबर्न समटाइम्स, सो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज इफेक्टिव इन केस ऑफ अगेंस्ट प्रोटोजोआ एज वेल। अल्ट्रासोनिक वेव्स का मैंने आपको बताया था कि अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होता है, वेरी लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स एंड LG is treated with ultrasound waves। अब देखें कितनी अजीब किस्म की जो है ये प्रोसीजर्स हैं कि पानी में जो LG होता है, दिस इज ऑल्सो वेरी यूँ आप कह लें, इट imparts color and odor and taste, and in addition to it, it is also you can say हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं होता। ऑब्वियसली एलजी क्या होता है, ये जो पानी के बीच में सब सी काई जो तैर रही होती है, दिस इज एलजी एंड नो वन विल वुड लाइक टू ड्रिंक दिस वाटर। सो समटाइम्स जब सरफेस वाटर ट्रीटमेंट स्पेशली जब हम कर रहे होते हैं तो उसके बीच में एलजी का होना बहुत कॉमन होता है। सो अल्ट्रासोनिक वेव्स आर समटाइम्स अडॉप्टेड टू treat this algaes. The amount of algae in water is reduced and controlled in an efficient, cost-effective manner, and further growth is inhibited. ठीक है, further growth को भी उसकी रोकता है and so on. Okay जी, क्या समझ आई? कुछ पल्ले पड़ा? Yes, मेरा एक सवाल है। ये पानी में जो सब बता दिया मैम जी, ये एलजी होती है। एलजी ये तो की वजह से नहीं होता अक्सर। किसकी वजह से? ऑयली, मतलब जब पानी ऑयली होता है तो वो सब नहीं रिस्ट ऑफ वाटर नहीं होता। ये जो ग्रीन कलर का होता है ना, ये एलजी होता है। एलजी बेसिकली प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट्स होते हैं, लेकिन ये ऐसे प्लांट्स नहीं होते कि जिनकी रूट्स भी हों और शाखें भी हों और पत्ते भी हों, और ये नहीं, ये सिर्फ एक, इन्हें लोअर प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, लोअर प्लांट्स का मतलब है इनमें सिर्फ जैसे धागे से होते हैं, ये उस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, बड़े भी हो सकते हैं रिबन सी फॉर्म में, या फिर छोटे छोटे से भी हो सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जहाँ पर पानी खड़ा हुआ हो जाए, जिसे डंड कहते हैं, तो डंड के बीच में पानी जब खड़ा होता है तो ऊपर एक सब्ज सी लेयर आ जाती है, तो ये पौधे बीच में पैदा हो जाते हैं। तो ये पौधे बेसिकली पानी के बीच में तैरते रहते हैं, इनकी उस तरह की जड़ें, शाखें, पत्ते नहीं होते। दीज आर नोन एज एलजी। ये ऑयल की वजह से नहीं होते। ऑयल बिल्कुल एक अलग सेपरेट चीज है
ऑयल इज इनऑर्गेनिक, ठीक है। एल्गीज जो है वो ऑर्गेनिक या प्लांट लाइफ होती है। ओके जी, सो मैम जी मैम आपने बताया कि क्लोरीन के अवेलेबल रेंज जो है ना 0.222 है। जी तो फिर प्लेन क्लोरीनेशन और प्री क्लोरीनेशन की क्या जरूरत है हमको? हाँ, देखें, ये जो प्लेन, प्री, डबल क्लोरीनेशन और सुपर क्लोरीनेशन, ये एक खास सिचुएशंस के बीच में होती है, ठीक है। खास खास सिचुएशंस थी उसमें डिस्क्राइब किया गया है। ये जो अभी आपको मैंने बताया ना 0.2 मिलीग्राम, ये रेजिडुअल क्लोरीन है। रेजिडुअल क्लोरीन वो होता है जो कि सेफ टू ड्रिंक है, ठीक। 0.2 मिलीग्राम इज सेफ टू ड्रिंक। आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशन में, उसमें जो मिनिमम अमाउंट जो है वो 0.25 है। तो ये 0.25 या 5 या 1 या इवन 10 जब हम पानी के बीच में एडमिनिस्टर करते हैं, पानी के बीच में डालते हैं, तो ये इस्तेमाल हो जाती है। जो ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन में आपने पढ़ा, ये इस्तेमाल हो जाती है पोल्यूशन को किल करने में, ठीक है। और जो है वो कंज्यूम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो अगर इसकी मिनिमम लेवल 0.2 तक रह जाए तो तब ठीक है, दिस इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग, इसका ये मतलब है, यस मैम। ठीक है। ओके जी, एनीवन एल्स? आज हबीबुल्ला खामोश हैं, खैरियत तो है? मैम आज लेक्चर थोड़ा आसान था, बस वो सिर्फ ग्राफ थोड़ा मुश्किल था। हाँ एग्जैक्टली, बाकी चीजें तो है वो इतनी मुश्किल नहीं है। ग्राफ इज मुश्किल और ग्राफ ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ग्राफ को आपने समझना है, इसकी तमाम चीजें जो है वो आपने याद करनी है, ठीक है। ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके जी, आपका हो गया ये वाला चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद आपका एक चैप्टर और रह जाएगा और वो होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो उसके बीच में हम डिजाइन भी करेंगे, थोड़ी थ्योरी है, ज्यादा थ्योरी नहीं है, लेकिन डिजाइन उसका बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक हो गया। सो ओके, आपने अभी जाना नहीं है, मैं आपकी अटेंडेंस लेती हूँ, थोड़ा सा होल्ड करें।